Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, and today I am going to explain monetary policy. So what is monetary policy? जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसका वह पार्ट होता है जो कि मुद्रा की पूर्ति यानी मनी की जो सप्लाई होती है और या उसकी लिक्विडिटी को प्रभावित करके वांछित आर्थिक उद्देश्य जैसे इन्फ्लेशन हुआ, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ये सब की वृद्धि दर जो होती है उसको प्राप्त करने में सहायता करती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसीज अफेक्ट द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द इकोनॉमी इन जनरल। देन दे कैन ऑल्सो बी attuned to influence a specific sector or industries or segment. The monetary and fiscal policies have important influence on the gross national product GNP. Actually GNP is equal to C plus I plus G plus X. This is the formula. GNP is equal to C plus I plus G plus X, where C is private consumption expenditure, I is private investment expenditure, G is government expenditure, and X is net export. Three of the components of GNP, namely C, I and X, can be influenced by the monetary policy, which can also influence the private consumption and investment spending and export and import. The government and the central bank make use of various physical and monetary weapons respectively to achieve stability and growth by influencing and regulating the behavior of the various classes of spenders as savers, consumers and investors. They can help make the overall economic situation and business prospect bright or check an unwarranted boom or unhealthy demand explosion. They can encourage investment and production in certain priority sectors and discourage them in non-priority sectors. And they also capable to influence technology choice and investment and production pattern. So let's see what actually monetary policy is. Monetary policy refers to use the instruments within the control of the central bank of influence the level of aggregate demand for goods and services or to influence the trends on certain sectors of the economy. The monetary policy operates through varying the cost and availability of credit, these producing desired changes in the assets pattern of credit institution, principally commercial banks. These variations affect the demand and the supply of credit in the economy and the level and nature of economic activities. The modern economy is regarded as a credit economy in the sense that credit forms the basis of most of the economic activities in such an economy. So let's see what are the measures of money stock. A knowledge of measures of money stock in an economy would help us to understand monetary policy better. So
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज मनी स्टॉक? एक्चुअली जो मनी स्टॉक होता है वो जितना फ्लो में है, जो मनी फ्लो में है, सर्कुलेट हो रही है, वहाँ पर उसका क्राइसिस तो नहीं है, वो होता है मनी स्टॉक। मतलब कि आपके पास मनी होनी चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। अगर मनी होगी तो अपने खर्च को पूरा करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया employs 4 measures of money stock, namely M1, M2, M3 एंड M4। सेंट्रल बैंक है ये इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मनी स्टॉक को 4 तरह से मेजर करता है। नंबर 1 इज M1, इट इज यूजुअली डिस्क्राइब एज मनी सप्लाई। M1 है मनी सप्लाई, यानी मनी की सप्लाई कितनी है। नेक्स्ट इज M2, M1 प्लस मनी सप्लाई प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स प्लस M1, ये इज इक्वल टू होता है M2। एंड M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। एंड इन M3 इज एक्चुअली मनी सप्लाई प्लस फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक्स। फिक्स डिपॉजिट बैंक्स के जो होते हैं और जो मनी सप्लाई है वो उससे M3 कैलकुलेट होता है। एंड M4 इज M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस जितने भी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में होते हैं, डिपॉजिट यानी कि इन्वेस्टमेंट ही होगा वो, तो M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। Let's see the instrument of money policy. इंस्ट्रूमेंट मनी पॉलिसीज, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, देर आर 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? दे आर जनरल और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट्स एक्सेट्रा। CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, बैंक रेट्स, ये सब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पर जो इसका जो चैनल होता है, क्वांटम चैनल, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव वास्तविक उसकी जो उत्पत्ति है तथा कीमत स्तर पर जो प्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक, मुद्रा स्टॉक या समग्र साख में परिवर्तन के माध्यम से पड़ता है। जो इंटरेस्ट रेट होती है, ये परोक्ष रूप से जो ब्याज दर है वो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करता है। एक्सचेंज रेट भी होता है, यहाँ भी मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति पर इनडायरेक्टली ये प्रभाव डालता है, जो कि एक्सचेंज रेट होता है। इससे वास्तविक उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। सो नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर सेलेक्टिव एंड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, such as change in the margin money, direct action, moral suasion, etc. The both method affect the level of aggregate demand through the supply of money, cost of money, availability of credit. Of the 2 types of instruments, the first category means quantitative instrument includes bank rates variations, open market operations, OMO, and changing reserve requirement, cash reserve ratio, statutory reserve ratio, etc. So बैंक की जो दर होती है ये और ये जो बैंक की जो दर होती है ये मौद्रिक नीति को तो प्रभावित करती ही है,
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो खुले बाजार की क्रिया होती है OMO होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा जो विविध परिसंपत्ति होती है, जैसे मान लीजिए कि विदेशी विनिमय हुआ, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड सोना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तथा कंपनी शेयर की खरीद तथा बिक्री, ये सब इसमें आता है। और जो रिजर्व बैंक के खुले बाजार की क्रिया से तात्पर्य होता है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनके सेल्स एंड परचेज होता है। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, बैंक रेट पर, ब्याज दर पर, इंटरेस्ट रेट जो होता है। रिजर्व बैंक जो है वो OMO का रिजर्व बैंक ने OMO का बहुत उपयोग किया है और जो प्रतिभूति की खरीद से बिक्री अधिक रही है, खरीदने से, प्रतिभूति खरीदने से ज़्यादा उसकी बिक्री हुई है, लेकिन OMO का उपयोग मौद्रिक नीति के औजार के रूप में, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के रूप में इन्फ्लेशन के नियंत्रण के लिए बहुत ही कम हुआ है। अधिक उपयोग कहाँ पर हुआ है, पब्लिक डेट में, लोक ऋण में। और इस पब्लिक डेट के नीति के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका उपयोग किया गया है। और जो सरकारी प्रतिभूतियां, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनकी कीमतें स्थिर रहें, ताकि इसलिए इसका उपयोग किया गया है। और वाणिज्यिक बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनकी भी मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए भी इसका उपयोग किया गया है, ताकि जो मौसमी छोटी जो कठिनाइयाँ ऑल ऑफ सडन आती हैं उनको, या सीजनल जो डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको दूर किया जा सके। और रिजर्व बैंक अब प्रतिभूति की बिक्री पर अधिक बल दे रहा है, ताकि मुद्रा के प्रसार को वो कंट्रोल कर सके और कीमतें स्थिर हों, क्योंकि आए दिन जो कीमतें हैं वस्तुओं की, सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने ये किया है। और जो इसका जो रिजर्व बैंक के कुछ जो परिवर्तनशील रिजर्व बैंक की आवश्यकताएं हैं, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें 2 प्रकार की आवश्यकता होती है। पहला है नगद रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा होता है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR और SLR। तो जो CRR है, इससे तात्पर्य होता है जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक के में जो कुल टोटल डिपॉजिट जो होता है उसके उस भाग से होता है जो कि उन्होंने रिजर्व बैंक के पास कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि अगर आप मान लीजिए आपके पास चेक बुक भी है, तो कई बार होता है कि आप अपने अकाउंट में कम से कम सारा पैसा आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते, कम से कम वहाँ पर 1000 रुपये रखना पड़ेगा। तो ये तो एक इंडिविजुअल की बात थी। उसी तरह से बैंक, जो रिजर्व बैंक क्या होता है, एक्चुअली बैंकों का बैंक होता है, और वो बैंकों का बैंक है, और बाकी जितने भी बैंक हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, वो रिजर्व बैंक के पास अपना, उनकी जो कुल डिपॉजिट होती है उसका कुछ पोर्शन रिजर्व बैंक के पास उनको रिजर्व रखना पड़ता है। और रिजर्व बैंक को ये अधिकार है कि वह उस जो कैश रेशियो है उसको 3 to 15% के बीच में बदल सके। और जो CRR का जो है, RBI एक्ट 1934 में CRR के बारे में, और उसी तरह से बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी ये प्रावधान किया गया है कि सभी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने कुल जो मांग जमा तथा समय जमा, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का कम से कम 25% लिक्विड एसेट, कैश, गोल्ड तथा जो भी एक्सपेक्टेड सिक्योरिटीज होंगी उनके रूप में उनको सुरक्षित रखना पड़ता है, उसको डिपॉजिट करके रखना पड़ता है।
और इसे ही वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। तो ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी यहाँ से ही होता है। और जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है वो कुछ वस्तुओं के लिए, जैसे खाद्यान्न हुआ, रुई और कपास हुआ, तिलहन तथा तेल, वनस्पति, चीनी, खांडसारी, गुड़, सूती वस्त्र तथा धागे, यहाँ पर इन शाख चयनात्मक शाख नियंत्रण यानी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसके ऊपर होता है। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।